From the heartbreaks to the hopes, from early exit to eyeing glory, the story of Portugal's journey from failure in 2022 to potential World Cup champions in 2026. 4 साल बाद it was again the time, the beginning of the most prestigious tournament. The World Cup was knocking the door, and the last dance for both of the goats, Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. पुर्तगाल के पास, रोनाल्डो के पास तब एक बहुत अच्छा सा स्क्वाड था, with a beautiful team, with a beautiful depth, with talent, with youngsters, with experience, with big names. And सबको लगा with fans, and everyone thought with this squad, Cristiano बहुत आगे तक जाएंगे इस स्क्वाड के साथ, leading from the front. Cristiano will take the squad to reach the heights as expected. बहुत आगे तक टूर्नामेंट पे जाएंगे स्क्वाड के साथ एंड पोटेंशियली कैन विन द वर्ल्ड कप, द ड्रीम. एंड ये हुआ भी, एक हद तक ही हुआ भी, बिकॉज ग्रुप स्टेज पे दे टोटली डोमिनेटेड द ग्रुप स्टेज. पोर्तुगल अलॉन्ग साइड घाना, उरुग्वे एंड साउथ कोरिया, तीनों को बहुत इजीली बीट कर दिया. 3-2 ओवर घाना, 2-0 ओवर उरुग्वे एंड 2-1 अगेंस्ट साउथ कोरिया helped them top the group, roaring to the round of 16 against Switzerland, where Gonzalo Ramos, a youngster, announced himself. सबको बताया कि कौन है वो, and 6-1. What a game. 6-1. Demolished, destroyed, humiliated Switzerland. And Switzerland को बाहर करके पोर्तुगल अपना स्पॉट फिक्स कर लिए थे क्वार्टर फाइनल के लिए. Quarter final against Morocco was set. Each and everyone, पोर्तुगल के फैन, रोनाल्डो के फैन, सबको पता था कि पोर्तुगल आर विनिंग अगेंस्ट मोरक्को. इजी विन, एंड वो आगे जाएंगे सेमीज पे, उनका तो पक्का है. शायद से फाइनल में भी पहुंच जाए, शायद से वर्ल्ड कप भी जीतने का मौका मिले. लास्ट चांस फॉर रोनाल्डो. पर 10th of December 2022 में ऐसा कुछ हो जाता है कि सब लोग, everyone ends up in tears. Ronaldo ends up in tears. Everyone was crying because Morocco defeats Portugal 1-0. A defensive masterclass from Morocco. The defensive masterclass from Morocco helped them to win over Portugal despite all their talents. They were outplayed. Their 4-3-3 lacked fluidity. Fernando Santos, with their rigid style, is reluctant to adapt, and the over-reliance on individual brilliance had caused them. एक generational talent, एक generational squad का dream खत्म हो चुका था, and सारे fans का भी दिल टूट चुका था. 10th of December. After the dramatic exit from the World Cup 2022, Fernando Santos immediately got sacked, and with the sacking, a new signing of a manager was done called Roberto Martinez from Belgium. अब दोनों का ideology, their way of style of playing, approach, सब कुछ अलग था. बट फर्नांडो सैंटोस, जो कि रोनाल्डो पे बिलीव नहीं किए थे क्योंकि उसके एज की वजह से उसको स्टार्ट नहीं लगा रहे थे मैचेस में, उसके जगह मोरक्को के अगेंस्ट गोंजालो रामोस को स्टार्ट मिला, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया. शायद से अगर रोनाल्डो को स्टार्ट मिलता कुछ बेटर करवा सकते थे. रॉबर्टो मार्टिनेज पहले ही इंटरव्यू में आके क्लियर कर दिया कि ही इज लुकिंग, आइंग फॉर रोनाल्डो. रोनाल्डो को स्क्वाड में क्रूशल एक पार्ट मानते हैं, एंड रोनाल्डो विल बी द वन हु विल lead the squad, the team from the front. With a new approach, new style, there was an arriving of a new tournament, new hopes. Euro 2024 in Germany was supposed to be a redemption arc for Portugal. Portugal, with the depth, with the squad, qualified with the flying colors, topping the group. With the new manager Roberto Martinez, there was a visible shift of approach. Fluid attacking football, midfielders dominating the play with the defensive line. It was looking very good, and
it was beautiful from the Portugal side. The team looks outstanding with experience, with blending of experience and talents, youngsters and big names. But unfortunately, 5th of July was again the repeat of the same script, repeat of the same historical thing as France versus Portugal quarterfinal stage, and again the same thing happened. Portugal got defeated against France at the big stage. It was Joao Felix who missed the penalty. 5-3 was the aggregate score, and Theo Hernandez scored the winning penalty for France, which led them to again the dramatic ending and the early exit for Portugal. Worst ending for Portugal, and after this tournament, Pepe called his retirement as they all were shattered into tears, heartbroken. पोर्तुगल लगातार 2 मेजर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अब सबको लगने लगा था कि इस बार भी अपकमिंग जो मेजर टूर्नामेंट आने वाला है, जो कि है यूईएफए अपकमिंग नेशंस लीग, उसमें भी खास कुछ ये स्क्वाड नहीं करने वाले। डिस्पाइट बड़े बड़े नाम्स तो थे, जॉ फेलिक्स, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, ये सारे बंदे अच्छे हैं, बढ़िया है, जा पाएंगे, ग्रुप स्टेज क्रॉस करेंगे, नॉकआउट शायद से 1-2 मैच अच्छा खेल लेंगे, बट सेमीज या फिर क्वार्टर्स या फिर अगर फाइनल पे पहुंच भी गए तो उनके सामने द जायंट्स ऑफ द बिजनेस फ्रांस और स्पेन, इन जैसे बड़े बड़े नाम उनके सामने रहेंगे, और शायद से इस बार भी पोर्तुगल हार जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जैसा कि पहले 2022 पे और 24 पे वर्ल्ड कप और यूरोज में हुआ था। पर रॉबर्टो मार्टिनेज ने सबका मोरल जो डाउन था, सबको होप दिलाया कि नहीं, इस बार विद अ प्रॉमिस that he will do something extraordinary with this squad, because he knows that the squad got the depth. रॉबर्टो मार्टिनेज ने अपने स्क्वाड के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी किया, थोड़े नए बंदों को बुलाया, डियागो कोस्टा को गोलकीपर पे, एंटोनियो सिल्वा को, गोंकालो इनाकियो को, फिर थोड़ा और मिडफील्ड में वेरिएशंस विद विटिनिया बीइंग द मेन मिडफील्डर, with João Neves being the engine in the central midfielder, बहुत अच्छे बंदों को फिर से बुला के, एंड विटिनिया को सब लोग आज दुनिया में सब लोग प्रेज कर रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं, सब लोगों को पता चल चुका है कि who is this guy, what he is capable of. So Vitinha is one of the crucial player for Portugal right now and for the upcoming World Cup also. So इस स्क्वाड के साथ एक नया फॉर्मेशन एडप्ट किया गया 4-2-3-1, जहाँ पे मेन फिर से इट वॉज वन दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द फ्रंट लाइन, मोर बैलेंस्ड, मोर ट्रांजिशन बेस्ड, मोर डेप्थ. विथ दिस डेप्थ दे emerged into the Nations League Cup. Now अपने नेशंस लीग के ग्रुप स्टेजेस में तो फिर से पोर्तुगल ने टॉप कर दिया, बीटिंग जायंट्स. They progressed in the round of 16, knockouts, semi-finals, quarters, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करके उसने अपने आप को दर्ज किया फाइनल में, दैट इज अगेंस्ट द ऑलमाइटी स्पेन. गेम स्टार्ट होने के कुछ ही मिनट के बाद, 20-21 मिनट के बाद, ज़ुबिमेंडी ने पहला गोल करके स्पेन को लीड पिला दिया, और उसके बाद वो लीड ज़्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि बहुत फार गेम फ्रॉम नुनो मेंडेस. दिस गाय लेजिट ओन्ड लमीन यमाल को इतना ओन किया ना इस बंदे ने पूरा गेम लमीन यमाल को राइट विंग पे कोई हरकत करने का मौका तक नहीं दिया. खा गया, इक्वलाइज किया. फिर 40 या 45 के बाद सेकंड हाफ में ही ओयारज़ाबाल ने लगा दिया था. फिर लीड पे आए, फिर रोनाल्डो ने 60-65 के बीच में ही शायद से एक और गोल लगा के उसको फिर से ड्रॉ, इक्वलाइज किया. एक बहुत अच्छा सा पोजीशन अपने आप को बनाया, फिर टैप इन किया. इट वाज अ टैप इन, बट इट वाज अ वेरी गुड पोजीशन फ्रॉम रोनाल्डो. डिस्पाइट इट वाज अ टैप इन, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड पोजीशन. सो इन सब कुछ के बाद दोनों
टीम पहुंच गए अपने एक्स्ट्रा टाइम एंड देन गोइंग टू द पेनल्टीज। दोनों ने 4-4 पेनल्टी स्कोर किया। उसके बाद माइटी मोराटा, ऑल माइटी मोराटा आ गया और सबको पता था कि जब मोराटा फ्री किक पेनल्टी लेने वाला है तो वो मिस करने वाला है, तो इट इज़ नॉट अ डिबेटेबल थिंग, व्हाटएवर। उसके बाद स्कोर किया, जीत गए मैच और बस पोर्तुगल का मेजर ट्रॉफी बहुत सालों बाद 2019 के बाद अब जाके हाथ पे आया। दैट वाज अ वेरी गुड एंडिंग। इफ दिस इज द एंडिंग फॉर रोनाल्डो देन इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड एंडिंग, इफ नॉट द ग्रेट एंडिंग, बट इट इज गोइंग टू बी अ गुड एंडिंग फॉर रोनाल्डो। अगर कोई मेजर ट्रॉफी लेके एंड करे अपना करियर, क्योंकि इस बंदे के ऊपर ये डिजर्व करता है, ये बंदा डिजर्व करता है। इस बंदे के जो स्टैट है कोई मैच नहीं कर पाएगा। ही इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस। सो इफ ही इज़ विनिंग दिस ट्रॉफी एंड एंडिंग हिज करियर लाइक दिस, डिस्पाइट ही इज़ प्लेइंग फॉर 2026 वर्ल्ड कप और नॉट, आई डोंट गिव अ शिट, बट स्टिल इफ ही इज़ विनिंग एंड क्लोजिंग हिज करियर, then everyone should be happy. Everyone should be happy, and we all should be happy. As we inch closer to 26 World Cup, Portugal is no longer just a dream, they are a threat. अब इस स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि अब ये स्क्वाड पोटेंशियली एक थ्रेटफुल स्क्वाड लगता है, सबको लगना चाहिए, क्योंकि पोर्तुगल इज़ नॉट अ जोक राइट नाउ। पोर्तुगल के पास बहुत अच्छा एक स्क्वाड, बैलेंस्ड एक स्क्वाड है, बहुत बढ़िया एक स्क्वाड है। डिस्पाइट 2022 पे एक बहुत घटिया तरीके से बाहर निकल गए थे अगेंस्ट मोरक्को हार के। और फन फैक्ट, कैमरामैन ने रोनाल्डो को फॉलो किया था टिल द ड्रेसिंग रूम, और रोनाल्डो जब रो रहा था, आंखों में आंसू थे, तब फॉलो किया था रोनाल्डो को। और रोनाल्डो का ऐसा हालत था कि वो टूट गया था, उसको लगा था कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, बट आई लॉस्ट इट, आई कुडंट मेक इट। बट दिस टाइम मे बी रोनाल्डो इज़ नॉट द ओनली वन हु इज़ फाइटिंग फॉर द कप। उसके साथ उसके दोस्त लोग, उसके टीममेट्स, उसके साथ कुछ और यंगस्टर्स रहेंगे जो रोनाल्डो को भी सपोर्ट करने का सोचेंगे, रोनाल्डो के साथ ये ट्रॉफ़ी लिफ्ट करना चाहेंगे, रोनाल्डो के लिए ये ट्रॉफ़ी लिफ्ट करना चाहेंगे। और उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस, ये बंदा प्रोबेबली फ़र्क नहीं पड़ता मैन्यू के लिए खेलता है या फिर व्हाटएवर, इसका ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना। ही इज़ अ रियल मैजिशियन। सबको लगता है यार, सबको लगता है और सबको लगना चाहिए। विद डियागो कोस्टा एट द गोलकीपर, बैक लाइन पे नूनो मेंडेस, रुबेन दियास, एंटोनियो सिल्वा, जोआओ कैंसेलो, क्या बंदे हैं ये सारे। What a back line. It's a very tight back line. It's a very good back line. With midfield, what a midfield also. Joao Neves, Bruno Fernandes and Vitinha. Vitinha is the one who's running the game. Vitinha is not the sharpest. He's not the quickest. But he is the smartest. वो जो स्पेस बंदे फिल नहीं करते, बेसिक्स पे बंदा काम करता है जो कि कोई नहीं करता। जब राइट बैक लेफ्ट बैक चढ़ जाते हैं ना, तो राइट बैक लेफ्ट बैक पे उसके विंगर्स अगर ओपोनेंट पुश कर देंगे तो फ्री अप स्पेस उसको कौन कवर करता है, वो ये बंदा करता है। ये बंदा विटिनिया, ये बंदे के पास सब कुछ है, विजन से लेके सब कुछ है। ये बंदा एक मिडफील्ड रन करने वाला बंदा है, इसके पास सब कुछ है, विजन से लेके सब कुछ। एंड थियरी ऑनरी ने भी कहा था कि Vitinha there's a special place in his heart with Rafael Leao, Gonzalo Ramos and Bernardo Silva in the front line with the GOAT. Of course, it's going to be Cristiano Ronaldo. A balanced 4-2-3-1 or a flexible 3-4-2-1 bench with depth. Players like Matheus Nunes, Trincao and Fabio Silva ready to deliver. So, in 2022, Portugal failed too early. In 2024, they fell too quietly. But in 26, this generation might just roar in the loudest way possible. So yes guys, if you like this video, then please do like, share and subscribe and follow for more. Thank you.